صدیوں پرانی بات ہے جب خلافت عباسیہ کا سنہری دور تھا۔ اس وقت بغداد میں دو قاضی اپنے فیصلوں کی بدولت شہرت پا رہے تھے۔ ان دونوں کے قصے زبان زد عام تھے، مگر ان دونوں قاضیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک قاضی اپنی عقل و دانش اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا۔ لوگ کہتے کہ وہ حقیقت کو پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا اور کبھی کسی کے دباؤ یا خوف کو خاطر میں نہ لاتا، جبکہ دوسرا قاضی ظلم اور ناانصافی کے لیے بدنام تھا۔ وہ طاقتوروں کا ساتھ دیتا اور کمزوروں کو پیس ڈالتا۔ ایک روز خلیفہ دربار لگائے بیٹھا تھا، چہرے سے پریشانی کے اثرات واضح تھے۔ ایک وزیر نے ہمت کر کے پوچھا، خلیفۃ المسلمین، کیا بات ہے؟ آج آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ خلیفہ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ بغداد میں سزائیں نافذ کرنے والے دو قاضی مقرر ہیں۔ دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ عدل سے کام لیں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں، مظلوموں کا ساتھ دیں اور ظالموں کا ہاتھ روکیں۔ لیکن لوگ ایک کی تعریف اور دوسرے پر لعنت ملامت کرتے ہیں۔ میں اس کا سبب معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر ایک قاضی امن و انصاف قائم کرتا ہے، اور کون سی ایسی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے سلطنت کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ خلیفہ نے وزیر کے ساتھ گفتگو میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک عرب تاجر کا بھیس اپنا کر ان دونوں قاضیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ چنانچہ ایک دن خلیفہ نے بھیس بدلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ قاضی رہتا تھا جسے لوگ ناپسند کرتے تھے۔ صبح سویرے خلیفہ قاضی کی حویلی میں پہنچا۔ چونکہ بھیس بدل رکھا تھا اس لیے اسے کوئی بھی پہچان نہ پایا، اور جب سورج طلوع ہوا تو لوگ حویلی میں آنا شروع ہو گئے اور حویلی لوگوں سے بھر گئی، اور جب فوجدار بھی وہاں آ گئے تو قاضی کو اطلاع دی گئی۔ وہ اپنے گھر سے باہر آیا، جسم میں اکڑ اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ تمام فوجدار دست بستہ کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد قاضی نے پوچھا، کیا کسی مجرم کو لائے ہو؟ جواب ملا، 3 نوجوان حاضر ہیں۔ قاضی نے حکم دیا، ان تینوں کو یہاں پیش کرو۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی ان تینوں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں لائے۔ قاضی نے انہیں دیکھا تو غصے سے بولا، میں تو ایک مدت سے انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ سب مفسد اور فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ برے کاموں میں بغداد بھر میں ان کی نظیر نہیں۔ ان کا تو سر اڑا دینا چاہیے۔ ان کا کام فقط یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ آج یہ میرے ہتھے چڑھے ہیں۔ پھر قاضی نے حکم دیا کہ انہیں زمین پر لٹا لو، ان کے پاؤں اور سر دبا کر پھر 40 کوڑے مارو۔ جب یہ سزا مکمل ہوئی تو قاضی نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ قاضی کی یہ کارروائی اپنے آخری مراحل میں تھی کہ بغداد کے 50 سے زیادہ عزت دار لوگ حویلی میں آئے۔ ان میں تاجر بھی تھے اور علماء بھی۔ ان سب نے ان نوجوانوں کی پاک بازی اور بے گناہی کی شہادت دی اور کہا کہ آپ کے سپاہی غلط فہمی میں انہیں گرفتار کر لائے ہیں۔ یہ ہرگز مجرم نہیں، انہیں فوراً رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے اپنی ڈٹائی میں ان کی بات نہ مانی اور اپنے حکم پر قائم رہا اور کہنے لگا، لے جاؤ، ان تینوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ اور اس کے بعد قاضی جس اکڑ سے تشریف لایا تھا اسی اکڑ سے گھر واپس لوٹ گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر خلیفہ بہت رنجیدہ ہوا اور اسے غصہ بھی بہت آیا، لیکن صبر سے کام لیتے ہوئے واپس دربار کی طرف لوٹ گیا۔ اگلے روز خلیفہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہونے والا قاضی رہتا تھا۔ طویل سفر کے بعد جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک لنگڑا فقیر دیکھا جس کے بوسیدہ کپڑوں سے غربت اور تنگ دستی جھلک رہی تھی۔ خلیفہ کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس فقیر کو کچھ سکے دیے۔ فقیر نے وہ سکے لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ خلیفہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو فقیر نے اس کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، اے معزز شخص، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو برائے کرم اسے پورا کریں۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں مزید پیسے چاہیے؟ اس پر فقیر نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کے بازار تک پہنچا دیں تو یہ آپ کا مجھ پر عظیم احسان ہوگا۔ خلیفہ کو اس فقیر پر رحم آیا اور اس فقیر کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے گھوڑا اب شہر کے قریب پہنچ چکا تھا جہاں ہر طرف تاجر جمع تھے۔ بازار پہنچ کر خلیفہ نے اس سے کہا، ہم بازار پہنچ چکے، اب نیچے اتر جاؤ تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ گھوڑے سے اترنے کی بجائے اس شخص نے خلیفہ کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، کیا میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر اسے تمہیں دے دوں؟ یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھوڑا تو میرا ہے
क्या नेकी का सिला ऐसे दिया जाता है? चलो अब नीचे उतरो। तब वो शख्स जोर से चिल्लाया और लोगों को सुनाने लगा, लोगों, ये शख्स मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरा घोड़ा मुझसे चुराना चाहता है। अब लोग वहाँ जमा हो गए और लोगों ने खलीफा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक ज़बरदस्ती करने वाला शख्स लग रहा था जो इस मस्कीन शख्स से उसका घोड़ा छीनने की कोशिश कर रहा था। खलीफा ने लोगों को यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की और कस्में खाईं, लेकिन एक शख्स ने तंजिया अंदाज में कहा, तमाम चोर तुम्हारी तरह कस्में ही खाते हैं। खलीफा ने लोगों की कड़वी बातें सुनी लेकिन खुद को काबू में रखा। फिर एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम दोनों घोड़े पर झगड़ रहे हो तो काजी रशीद की अदालत में चले जाओ, वही इस मसले का फैसला और असल मालिक का पता लगा सकता है। खलीफा ने कहा, मैं काजी के पास जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे वहाँ का रास्ता दिखाओ। लंगड़े फ़कीर ने भी फ़करिया अंदाज में कहा, मैं भी काजी की अदालत में जाऊँगा ताकि वो मुझे मेरा घोड़ा वापस दिलाए। उसे उम्मीद थी कि एक फ़कीर की बात काजी भी फ़ौरन मान जाएगा। खलीफा ने अब घोड़े को लेकर चलना शुरू किया, जबकि फ़कीर उसके पीछे ही बैठा हुआ था। बाजार के इख्तिताम पर खलीफा ने देखा कि एक घी फरोश ने एक खरीदार का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। खरीदार की मुट्ठी में पैसे थे और उसने मुट्ठी को मजबूती से बंद कर रखा था। वो दर्द से चीख रहा था, जबकि लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे। लोगों को इर्द गिर्द देखकर खरीदार चिल्लाया और कहने लगा, मेरा हाथ छोड़ दो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। घी फरोश ने कहा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं कर देते। खरीदार ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये मेरे पैसे हैं, छोड़ दो मेरा हाथ। खलीफा अब आगे बढ़ा और मामला दरियाफ्त किया। घी फरोश ने जवाब दिया, ये आदमी मेरे पास घी खरीदने आया था, मैंने एक घी का डब्बा इसे भर कर दिया। फिर इसने 10 दिनार के सिक्कों को छोटे सिक्कों में बदलने को कहा। जब मैंने सिक्कों का थैला खोला तो इसने मुझसे सारे सिक्के छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर खरीदार कहने लगा, ऐ मुअज़्ज़ज़ शख्स, इसकी बातों पर यकीन ना करें, बल्कि मैंने अपने थैले से पैसे निकाले थे ताकि इसे घी के बदले में रकम अदा कर सकूं, लेकिन इसने मेरे पैसे चुराने की कोशिश की और मेरा हाथ पकड़ लिया। तमाम हाजरीन उन दोनों की बातें सुनकर बहुत हैरान हुए। फिर एक शख्स ने कहा, हम नहीं जानते कि तुम में जालिम कौन है और मजलूम कौन। बेहतर है कि तुम दोनों काजी हारून के पास जाओ ताकि वो तुम्हारा बेहतर फैसला कर सके। खलीफा ने कहा, हम दोनों भी काजी के पास जा रहे हैं, चनाचे तुम भी हमारे साथ चलो। अब वो चारों काजी की अदालत की तरफ रवाना हो गए। जब वो काजी के दरबार के सहन में पहुँचे तो वहाँ और लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खलीफा ने वहाँ एक किसान और एक आलिम को देखा जो एक लोंडी के साथ खड़े थे, और दोनों में से हर एक का दावा था कि वो लोंडी उसकी है और उसने उसे मेहनत की कमाई से खरीदा है। खलीफा ने हैरत से सोचा कि ये तीनों मुकदमे बहुत पेचीदा हैं और हर एक दूसरे से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। देखते हैं काजी इन पर क्या फैसला करेगा, क्या वो वाकई ही इन फैसलों पर इंसाफ फराहम कर पाएगा जैसा कि उसके अदल और इंसाफ के चर्चे हैं। कुछ देर बाद एक खादिम आया, उसने मुसल्ला बिछाया और उस पर रहल रखकर कुरान पाक रखा। थोड़ी देर बाद सजा नाफिज करने वाला बूढ़ा काजी अपने घर के दरवाजे से बाहर आया और उसने मुसल्ले पर खड़ा होकर चंद रकत नमाज नवाफिल अदा की। इतने में लोग भी आना शुरू हो गए और अच्छा खासा मजमुआ बन गया। जब काजी अपने विर्द और वजीफों से फारिग हुआ तो उसने लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज किया। उसी लम्हे दरबार का दरबान नाजिल हुआ और बोला, जिसके पास कोई शिकायत या मसला है वो काजी की अदालत में पेश हो जाए। सबसे पहले आलिम और किसान लोंडी के साथ जल्दी से दरबार में दाखिल हुए। फिर घी फरोश खरीदार का हाथ पकड़े हुए दाखिल हुआ और आखिर में खलीफा और फकीर भी दरबार में दाखिल हुए। काजी ने फौरन घी फरोश की तरफ देखा और कहा, साहिब, तुमने इस शख्स का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? घी फरोश ने अपनी कहानी सुनाई, जबकि खरीदार ने एतराज़ करने की कोशिश की। काजी ने उसे खामोश करवाया और कहा, जब उसे बोलने के लिए कहा जाए तब ही वो बोले। जब घी फरोश ने अपनी बात मुकम्मल की तो काजी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे दावे के हक में तुम्हारे पास कोई गवाह है? घी फरोश ने कहा, क्या ये काफ़ी नहीं कि इसे चोरी करते हुए मैंने खुद पकड़ा, फिर गवाह की क्या ज़रूरत? फिर काजी खरीदार की तरफ मतवज्जे हुआ और कहा, क्या तुम्हारे पास अपने दावे के हक में कोई गवाह है? खरीदार ने कहा कि मेरे पैसे मेरी मुट्ठी में हैं, क्या मुझे गवाह की ज़रूरत है? काजी साहब, इंसाफ कहाँ है? काजी ने कहा,
तुम दोनों अपने पैसे मेरे पास छोड़ दो और कल आकर अपना फैसला सुन लेना। घी फरोश और खरीदार ने पैसे काजी के पास रख दिए और वापस चले गए। फिर काजी ने आलिम, किसान और लोंडी की तरफ देखा और कहने लगा, अब आप लोग बोलो, आपकी क्या शिकायत है? आलिम बोला, मैंने तकरीबन 1 साल पहले इस लोंडी को खरीदा था ताकि ये मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करे, लेकिन आज ये किसान आया और दावा किया कि ये लोंडी उसकी है और कल ही उसके घर से भाग कर आई है। काजी ने आलिम से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है जिससे ये साबित हो कि तुमने ये लोंडी गुलामों के बाजार से खरीदी थी? आलिम ने कहा, मैंने इसे गुलामों के बाजार से नहीं बल्कि एक राहगीर से खरीदा था और उसने मुझे कोई दस्तावेज नहीं दी। काजी ने फिर पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स है जो ये गवाही दे सके कि ये लोंडी तुमने खरीदी थी? आलिम कहने लगा, मेरी बीवी इसकी गवाही दे सकती है। काजी ने कहा, तुम्हारी बीवी की गवाही इस पर मोतबल नहीं होगी और ना ही वो मानी जा सकती है, क्योंकि वो तुम्हारे हक में ही गवाही देगी। फिर काजी किसान की तरफ मतवज्जा हुआ और कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है जिससे साबित हो कि ये लोंडी तुम्हारी मलकियत है? किसान ने कहा, मैंने भी इसे एक राहगीर से खरीदा था और उसने भी मुझे कोई दस्तावेज नहीं दी। काजी ने उससे भी पूछा, क्या कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि ये लोंडी तुमने खरीदी थी? किसान ने कहा, आप इसी लोंडी से पूछ लें। काजी ने जवाब दिया, लोंडी की गवाही मोतबर नहीं होगी क्योंकि वो आज़ाद नहीं है, और अगर वो मोतबर होती तब भी हमें एक नहीं बल्कि 2 गवाहों की ज़रूरत है। जब आलिम और किसान दोनों ही गवाह लाने में नाकाम हुए तब काजी ने कहा कि तुम दोनों लोंडी को यहाँ छोड़ जाओ और कल आना, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि इसका असल मालिक कौन है और झूठा दावा किसका है। आलिम और किसान लोंडी को वहाँ छोड़कर चले गए। इसके बाद काजी ने लंगड़े भिखारी और खलीफा की तरफ देखा और कहा, और तुम दोनों का क्या मसला है? खलीफा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी मुलाकात एक भिखारी से हुई और उसने कैसे उस पर मेहरबानी की। फिर उसने उस पे तरस खाकर अपने घोड़े पर सवार किया, लेकिन भिखारी ने उस पे कब्जा जमा लिया और दावा किया कि ये घोड़ा उसका है। जब खलीफा ने अपनी बात खत्म की तब काजी ने भिखारी की तरफ देखा और कहा, अब तुम बताओ कि इस बात का तुम्हारे पास क्या जवाब है? भिखारी ने खलीफा की सारी बातों को झूठा करार दिया और ये दावा किया कि ये शख्स अपनी ताकत के बलबूते पर मेरा घोड़ा मुझसे छीनना चाहता है। दोनों की बात सुनकर काजी ने कहा, ठीक है, घोड़ा मेरे पास छोड़ दो और तुम दोनों कल आना, ताकि मैं इस बात पर फैसला कर सकूं, ताकि मालूम हो सके कि घोड़े का असल मालिक कौन है। अगले दिन ये सब काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने घी फरोश से कहा कि अपने पैसे लेकर वापस चले जाओ। फिर उसने खरीदार की तरफ इशारा करके सिपाहियों से कहा, इस धोखेबाज को 30 कोड़े मारो और अगर ये दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे कैद खाने में डाल देना। फिर काजी ने आलिम से कहा कि तुम अपनी लोंडी लेकर घर को लौट जाओ, और किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस धोखेबाज को 50 कोड़े मारो और दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे भी कैद में डाल देना। सिपाहियों ने खरीदार और किसान को बाहर ले जाकर कोड़े मारे। फिर काजी ने खलीफा और भिखारी की तरफ देखकर कहा, क्या तुम अपने घोड़े को 20 घोड़ों में पहचान सकते हो? खलीफा ने कहा, जी हाँ, मैं अपने घोड़े को पहचान लूँगा। भिखारी ने भी दावा करते हुए कहा, मैं भी अपने घोड़े को 1000 घोड़ों में पहचान लूँगा। काजी अब अपनी जगह से उठा और कहने लगा, मेरे साथ आओ। अस्तबल के दरवाजे पर पहुँचा जहाँ 20 से ज़ायद घोड़े थे। काजी ने भिखारी से कहा, तुम यहीं पर रुको और जब मैं कहूँगा तुम तभी अंदर आना। काजी ने खलीफा से कहा, तुम अंदर जाओ और अपने घोड़े को जाकर पहचानो। खलीफा अस्तबल में दाखिल हुआ और सीधा अपने घोड़े की तरफ बढ़ा और अपने घोड़े के पास जाकर कहने लगा, ये रहा मेरा घोड़ा काजी साहब। काजी ने खलीफा को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। फिर काजी ने भिखारी को अंदर बुलाया और कहा कि जाओ और अपने घोड़े को पहचानो। भिखारी भी सीधा उसी घोड़े के पास गया और कहने लगा, ये रहा मेरा घोड़ा काजी साहब, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने घोड़े को 1000 घोड़ों में भी पहचान लूँगा। फिर काजी ने इत्मीनान से मुस्कुराकर खलीफा से कहा, तुम अपना घोड़ा ले जाओ ताजिर, और फिर सिपाहियों को इशारा करते हुए कहा, इस जालिम को 40 कोड़े मारो और दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे भी कैद में डाल देना। खलीफा ने हैरत से काजी से पूछा, ए काजी, तुमने ये कैसे पहचाना कि घोड़ा मेरा है? काजी ने कहा, ये तजुर्बे और मुशाहबत का कमाल है। खलीफा ने पूछा, वो कैसे काजी साहब? काजी ने जवाब दिया, जब तुम अस्तबल में दाखिल हुए तो घोड़ा तुम्हें देखकर हिनहिनाया और अपनी गर्दन को तुम्हारी तरफ झुकाया, यानी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन जब भिखारी अंदर दाखिल हुआ तो घोड़ा फुनकारने लगा और उससे नफरत का इजहार किया। इससे जाहिर हुआ
कि तुम घोड़े के असल मालिक हो। फिर खलीफा ने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि घी फरोश पैसों का असल मालिक है, ना कि खरीदार? काजी ने जवाब दिया, मैंने रात को एक पानी के गिलास में वो सिक्के डाल दिए और सुबह देखा कि पानी की सतह पर घी की तह जम चुकी है। चूँकि घी फरोश का काम चिकनाई से होता है, इसलिए उसके हाथों से सिक्कों पर घी लगा हुआ था। इससे ये जाहिर होता है कि उन सिक्कों का असल मालिक वो घी फरोश ही था। खलीफा की हैरत मजीद बढ़ गई। फिर खलीफा ने आलिम से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि लौंडी का असल मालिक आलिम है, वो किसान नहीं? काजी ने जवाब दिया, इसमें भी तजर्बे और मुशाहिदे का कमाल है। मैंने सुबह लौंडी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मेरे लिए दवात भरो, और अपनी बीवी को कहा कि वो उस पर नज़र रखे। लौंडी ने दवात को धोया और फिर उसे खुश्क किया और फिर महारत से उसमें रोशनाई भर दी। उसने एक कतरा भी ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। इससे मुझे ये मालूम हुआ कि वो इस काम में माहिर है और यकीनन आलिम के साथ रहती है। खलीफा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो आप ही हो जो अपनी फहमो फिरासत, तजर्बे और उम्दा मुशाहबत को इस्तेमाल करते हुए लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करते हो। काजी ने आजिज़ी से जवाब दिया, इसमें मेरा क्या कमाल साहिब, ये तो अल्लाह की तौफीक है। फिर खलीफा ने अपनी असल हकीकत जाहिर की और कहा, मैं इस मुल्क का खलीफा हूँ। मैंने तुम्हारे इंसाफ और अक्लमंदी की बहुत शोहरत सुनी थी, इसलिए मैं खुद आकर मुशाहिदा करना चाहता था। जो कुछ मैंने खुद सुना था उससे कहीं ज़्यादा पाया। अब जो चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। काजी ने जवाब दिया, ए खलीफातुल मुस्लिमीन, इंसाफ का क़याम ही मेरा असल इनाम है। ये सुनकर खलीफा ने दूसरे काजी पर लानत भेजते हुए कहा, अफसोस, उस जालिम ने 3 बेगुनाह लोगों पर जुल्म किया और उन्हें कैद में डाल दिया। इसके बाद खलीफा फ़ौरन वहाँ से रुखसत हुआ और दरबार पहुँचकर हुक्म दिया कि जालिम काजी को फ़ौरन माजूल कर दिया जाए और तीनों बेगुनाह लोगों को रिहा कर दिया। फिर काजी हारून के बारे में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा काजी मेरी सल्तनत में मौजूद है। खलीफा ने काजी हारून के लिए हुक्म फरमाया कि माजूल शुदा काजी का मंसल भी उसी काजी के हवाले कर दिया जाए और उसे इनाम से नवाजा जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।